So welcome dear students. Today once again we will start with our physics revision. So last lecture we were having our exam. So we had empty practice, then yesterday empty doubt session. So it's okay. Now we will go for continuing with current electricity because it is one of the important topics. Without current electricity, nothing can be done. What is the date today? 19? Okay. I know that for you people it will be 20. Here it will be 19. 2020. So really now it is the time for 2020. Till this time, within the corona pandemic, we have played test cricket. Very sorry for the disturbance. So we are playing the test cricket. Test cricket. 6 months. Because the government only told play the test cricket. बॉल को खेलना नहीं है, छोड़ दो बॉल, खाली वो विकेट के ऊपर नहीं जाना चाहिए. सो वी डिड दैट. उसमें भी हम चुप नहीं बैठे, थोड़ा इधर स्क्वायर ड्राइव, थोड़ा कट वगैरह नहीं मारा, लेकिन थोड़ा प्ले. तो अभी दिस इज द टाइम नाउ to try for fours and sixes, boundaries. Now there will not be any no ball. Up till now, 5 no ball were there. Lockdown 1, lockdown 2, now unlock 1. Means now the ball will come straight onto your bat. Now it is your duty to play it very nicely. So those who will play it very nicely, they will go ahead. That's today's thought. We'll start with. Till last lecture, we have studied about the EMF as well as what we have studied, internal resistance R, correct? Terminal potential difference V, terminal PD. And then we have studied about the Kirchhoff's rules, then how to study the mixed groupings and all. So let me ask you, is that revision sufficient or you want me to solve some more problems on that? Otherwise I will afterwards give you the problem list from any exam idea, OSWAL, your JEE problem, CET problems, whatever. You may find those problems and personally you may ask your query. Because for each and every problem, personally you will have your own different doubt. Somebody will be okay in that current calculation. Somebody will think that this loop, sir, how it is taken, I have not understood. So that you may ask me personally. So within a week, in between, you may ask your queries also. It is not like that. If it is that much of important query, then we will discuss on the board or off. Agreed my point? So right now, I think it's better to go ahead with this only and to discuss many important things. So what are those important things that we will look up? So till that, I have given you the relation between terminal PD, EMF and internal resistance. Also I have explained you what are the cells in series and cells in parallel. So up till that we have covered. Now about EMF, I want to add something. Okay? So we will discuss about EMF of a cell. And then we will go back. Now what happens when you consider a cell or a battery? First of all, we will consider a cell. It will have its electrodes, है ना? अरे sir, no. This is positive, this is negative. And these are the connections.
Now what happens? I have to speak loudly because that mic it should be able to catch. So I have to speak with double sound. So pardon for that. I don't have right now any solution on that. So I may be speaking like scolding anybody. So that is not my scolding, just for increasing the sound. So when I in between, what will be there? Electrolyte, है ना? Electrolytic solution, otherwise gel in the form of gel, in the form of powder, whatever. Electrolyte is there, है ना? Why I am telling you this? Because once you will study the Lenz law. In Lenz law, the same thing once again you have to study. Not electrolyte and all, but in different. So now what happens? I know that negative terminal is the source of electrons. Are yes or no? Many electrons will be sitting on the negative terminal. We are ready for the conduction. And the positive terminal will be the sink, where those electrons will be accepted without any request. They will open their door. जिनको आना है आ जाओ भाई. कितने हैं? 2 है, चलो. 10 है, चलो. 100 है तो भी चलो, नो प्रॉब्लम. The room is big, adequate. Now this is the scenario outside the battery. Whatever I am discussing is outside the battery. So beta, you have to keep in mind. खाली आउटसाइड देखने से कुछ नहीं होता है, क्या इनसाइड क्या चल रहा है वो भी देखना पड़ता है. अरे सर नो. So what is happening outside? The same way what is happening inside, that is also very important, that we have to see. And what is that? We will go for that. So if I will connect this circuit, suppose I will put some resistance over here and put some key and all. So this circuit is now completed. So you are knowing that now electrons will rush from negative terminal and they will move through the resistor and they will reach the positive terminal. They will not directly come and sit here. They will go through the pathway that is called as the electric circuit. That you are knowing. Now, the same time, यहाँ से यहाँ जा रहे बेटा, तो यहाँ से खाली यहाँ जाने से सर्किट कंप्लीट नहीं होता है. दिस इज द प्रॉब्लम. आपको क्या लगता है इस बीच में इलेक्ट्रॉन घूमता नहीं जाता है? जाता है बाबा. तो क्या करता है? मैंने साइकिल कैसे किया? निगेटिव से पॉजिटिव तक बाहर, आउटसाइड. तो इनसाइड वही साइकिल का ऑर्डर कंटिन्यू करने का. कहां से निकला? निगेटिव से. कहां पहुंचा? पॉजिटिव. अभी कहां जाना है उसको? So the outside the battery, electrons will move from negative to positive, whereas inside the battery, you will consider that they are moving from positive to negative. ये कैसे होता है? आयन फॉर्मेशन वगैरह होता है. You are doing that. Cations, anions, है ना? Now tell me, पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक. पॉजिटिव आयन कैसे बन जाएगा? आयन मतलब उसको चार्ज ही पकड़ो ना. अरे आयन का मतलब when electron will be removed from there, अरे sir, so it will create a positive charge and the place where the electron will come, that I will consider as a negative charge. Are you getting my point? In the same way, whatever are the electrolytes, suppose NaCl is there, then I can split that to be Na plus and Cl minus. You getting my point? So why this plus and why this minus? It depends on the valency. है ना? Those who are having valence electrons which are able to conduct or able to make the covalent bond, ionic bond, so which are able to make the bond formation that you have already studied in your chemistry. So those will be creating a positive, and the remaining chlorine, it wants some electrons to complete its octet, है ना? That's why they will be negative. अरे सब समझते सगळे. So in that way ion formation happens. Now what happens once the electrons are moving inside the battery? There is electrolyte. Then electrolyte opposes the flow of electron. Electrolyte बोलता है मत जाओ, बाहर जो किया, बाहर नाच रहे थे नाचो.
अंदर ये मेरे घर में नहीं चलेगा, नॉट पॉसिबल, गो बैक लाइक योर टीचर सब छोड़िए ना, गो बैक सिट इन क्लास। फिर भी आप अपोज करके वो सिर्फ 2 मिनट कुछ तो करके, वैसे इलेक्ट्रॉन को करना पड़ता है। सो द सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लाइक यू, इलेक्ट्रोलाइट मींस द टीचर इज स्कोल्डिंग right time right way every time. So this scolding, this oppose, they have to come out. Now tell me, if electron is moving, what we call it as current, yes or no? So outside the conventional direction of current, that is why the convention of direction of current is opposite to flow of charge, flow of electron, that will from positive to negative. So in order to complete the circuit, here the flow of current will be there from positive to, so negative to positive. So there will be opposed to that current. So how much opposed will be there to that current is decided by calculating which type of electrolyte we are using, in which form you are using, how many ions it will form, what are the impurities in that. Purpur questions. Okay, so they decide how much they will oppose, and depending on that, your internal resistance will be decided. That's why we are using these two terms, internal resistance. What is the meaning of internal resistance? So first one we have to define internal resistance. अभी तक आपको डायरेक्टली पढ़ाया नहीं, क्यों समझने के लिए, अभी अच्छा समझे। internal resistance, it is just the resistance offered by the cell itself, means actually the electrolyte. electrolyte ने जेवढा resistance offer केला आहे, that will be called as the internal resistance, but it is shown outside. अंदर कैसे शो करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ये सर्किट नहीं आपका गलत दे देंगे। तो क्या करने का, इसको हम अपने कन्वीनियंस के लिए बाहर लिख सकते हैं। तो ये बन गया, ओके। अभी बोलो मेरे को, if there is a oppose, means what will be applied on that charge? अरे अपोज करना है ना, निकल रहा है, तो सामने से क्या अप्लाई करेंगे, धक्का, फोर्स, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, मतलब उसका अपोज हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, नो नॉट पावर, मींस करेक्ट, ही विल अप्लाई, ही मींस इट विल अप्लाई इट्स फोर्स टू कम ओवर दैट। सपोज मेरे को आपने पकड़ के रखा, सर मत जाओ सर, मेरे को जाना है तो रुकूंगा क्या, अरे हट, दैट इज द फोर्स आई हैव अप्लाइड अगेंस्ट योर अट्रैक्शन। उल्टा मैं जा रहा हूं, उसको भी सुनने वाला नहीं हूं, जाऊंगा एक झापड़ देखने, आई विल गो। सो वॉट एवर द फोर्सेज आई एम अप्लाइंग, दे विल बी कॉल्ड एज द फोर्स अप्लाइड बाय मी। मैं फोर्स करूंगा, फोर्स देगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स दिया तो डिस्प्लेसमेंट होता है, करके दिखाओ किसी को, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, अभी क्या आ गया, वर्क आ गया। सो ईएमएफ दिखने में दिखता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स से उसका कोई लेना देना, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दैट, लेकिन while define will not define. You will define work done by battery to move a unit charge from one terminal to another terminal. तो अंदर का डिसाइड नहीं करते, देखो कितना चापलूसी किया, बताने के लिए बाहर का सब बताया, ये अंदर का हमारे लिए रखा है, ये आप सिखाओ, आपको बोलना चाहिए ना, हाँ सर ने बताया इससे हो गया। बात उसमें क्या रहता है, वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अंदर में उसका अपोज होता है, और अंदर का अपोज नहीं निकला तो सर्किट विल नॉट बी गेट कंप्लीटेड। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ईएमएफ का डेफिनेशन डिसाइड करने का जरूरत नहीं है, आज का लेक्चर ध्यान में रखो। वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, दैट्स ऑल। रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस,
the resistance offered by cell to the flow of charge or to the current is called as internal resistance. And terminal PD, difference of the voltage or difference of the potential between the terminals of the cell is called as the terminal potential difference. If we are charging the cell and if we are discharging the cell, चार्जिंग के लिए आपको ज्यादा देना पड़ेगा, चार्जिंग के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा V will be, अरे ये सॉल्व नो ग्रेटर देन एप्सिलॉन, उसको कैसे लिखते हैं एप्सिलॉन प्लस I into R, दैट्स ऑल, रिसेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वही सेल हमने डिस्चार्ज किया मतलब एज ए सोर्स उसको यूज किया तो अपना सब कुछ नहीं दे देगा, मेरे पास जितना है मैं कभी नहीं देता, कुछ तो अपने पास रखता हूँ, आपको पूछना पड़ता है ये मेरा डाउट कैसे है, क्यों पूछना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब लाइक दैट। तो सेल भी वैसे करता है। 1.5 वोल्ट है, आपको क्या लगता है 1.5 है, नहीं 1.4 ज्यादा था, 1.42 45 ओके 47 ओके 0.03 तो जाएगा। हाँ, तो when the cell is discharging V will be less than epsilon, that means V will be epsilon minus I into R। अभी यहाँ पे जितना प्लस है और यहाँ पे जितना माइनस है उसमें कौन है जिम्मेदार, R। हाँ, मैं बोला मेरे को 100 रुपए चाहिए, मैंने छुपाया, मेरे साथ दर्ज भी था, तो उसको भी लगेगा ना, मैं 100 नहीं तो 10 रुपए का तो लगेगा कुछ खाने पीने के, तो मैं मांगने के लिए कितना मांगूंगा 110, तो मैं ले लूंगा पीछे 10 रुपए रख लो, है ना। अरे सर देना है तो 110 है मेरे पास, बट आई विल थिंक अबाउट हिम, अरे इसको भी खाने देना है शाम को, तो 10 रुपए बाजू रखता हूँ, 100 रुपए दूसरे को देता हूँ। इट इज लाइक दैट। सेल क्या करता है, सेल के पास उसका एक अपना अपना एक चेला होता है, सेल के पास कोई चेला मतलब इंटरफेस, उसको खिलाना पिलाना पड़ता है ना, एक चेला होता है उसको खिलाना पिलाना उसका जिम्मेदारी है, तो उसको खिलाने पिलाने के लिए वो क्या करता है उसका पार्ट अपने पास रखता है और बाकी बोलते हैं तू ले जा, तो उसको बोलते हैं मेरा ईएमएफ है, सॉरी मेरा टर्मिनल पोटेंशियल 10 लाख है, 8 लाख ले जा, 2 लाख बच्चे के लिए चाहिए, अपना बच्चा है उसको चाहिए, लेना है तो 10 लाख चाहिए तो कितना ले लेगा 12 लाख, वाई बच्चे के लिए चाहिए। अरे गेटिंग योर पॉइंट, इन दिस वे यू कीप इन माइंड, you will not get any problem, understood? All the tricks I have explained you, okay? Now what we do, let's solve one more problem, just I will give you the idea and then we will go for the idea, okay? Is there any doubt, any query, am I going fast? So now suppose again we will take the problem of some cells and all, okay? So if you will not solve it completely, then no problem. Right now, learn how to solve that. That is very important, है ना? यहाँ पे किरचॉफ रूल यूज कर सकते हो क्या? अरे सर 2 वोल्ट 3 वोल्ट, हाँ थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी इधर उधर करना पड़ेगा, मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा वैल्यू, 1 वोल्ट 2 वोल्ट, ये 1 ओम लेता हूँ इसको, 2 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम, तो बोला ए, सबको बोल के ए बी सी डी ई एफ, अंडरस्टूड? अपने पास कितने मेथड है, 2 मेथड है, पहले कौन सा देखें, सब्जेक्टिव लिए क्या करने का, सब्जेक्टिव लिए 3 लूप करने का, एक इसका लूप आएगा ए स्क्वायर का, सेकंड विल बी ऑफ दिस स्क्वायर, है, और तीसरा ये पूरा इसको नहीं देंगे, मतलब सब सपोज ए बी सी एफ ए, तो दूसरा उल्टा लेते हैं ना, आप इधर से लेते हैं, तो ई बी सी एफ ई, और एक बी सी
D, E, F, A, B. How many loops will be there? 3 loops. बाकी बोलने का जरूरत ही नहीं है, किधर से भी चालू करो, लेकिन वो चालू करने के पहले आपको यू हैव टू गेट द आइडिया व्हाट इज द सिनेरियो हियर. सो यहाँ पे सिनेरियो बताओ. पॉजिटिव पॉजिटिव असिस्ट अपोज अपोज ऊपर लिखता हूं मैं पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव. छोड़ दो, हो गया. इसका खुद का इंटरसेक्शन किसको पकड़ो, ये इसका चेला फिर इसका, हो गया. उसको बाद में करना. इधर क्या लिख कर दो 2 वोल्ट और कितना 1 ओम है ना. अरे सर दिख रहा है बेटा. देन 1 वोल्ट 2 ओम हो गया. बाद में यहाँ इसको कैसे करोगे, ऐसे इसको यहाँ पे देखो कैसे है, ये जहाँ निगेटिव है ना, 2 निगेटिव जहाँ मिलते हैं इसके बीच में है ना. अरे बेटा मैंने कुछ गलत किया नहीं ना, नहीं इस तरह दिस इज एफ ना. सो आई विल कॉल दिस टू बी एफ एंड दिस टू बी सी. है बराबर. इन बिटवीन एफ एंड सी को पॉजिटिव बराबर ना. ये और नो आइडिया क्या है, बाकी कुछ नहीं है. इसको एफ बोला, इसको सी बोला, फिर ये इसके साथ मैंने मर्ज किया. इसको क्या लिखोगे बेटा 2 वोल्ट 2 ओम. तो 2 वोल्ट 2 ओम. ये क्या हुआ, ये एक ही है ना. इसको कैसे लिखेंगे, सी को निगेटिव तो सी को निगेटिव और ये पॉजिटिव और इसका कितना बनेगा 3 वोल्ट और ये नहीं 2 1 1 पूरा. हाँ इसको 3 बच्चे हैं. हाँ इसको एक बच्चा है, इसको खुद का एक है, खुद का है. इसने गोद नहीं लिया दोनों को, इसका खुद का है तो इसका ही है ना, नाम आएगा. तो 2 + 1 + 1 4. अभी क्या करना है, up till now you have understood everybody. Is there any need to solve Kirchhoff's rule? मतलब एग्जाम में तो करना पड़ेगा सब्जेक्टिव. हाउ टू डू दैट, सो यू आर हैविंग एग्जाम आइडिया. So sit with exam idea. No idea, get idea. Huh? Otherwise purchase SIM card of idea. Okay? This is very simple. अभी क्या करेंगे, इसके लिए series. तो हर्ष how much will come? -2 -1. तो ये बन गया -2 -1 मतलब -3 वोल्ट बन गया. तो इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूँ -3. अरे ऐसा ना मतलब उसको 3 लिखने का और ऐसा पोलैरिटी दिखाने का, बाकी कुछ नहीं. 3 वोल्ट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये 1 और ये 2 3 ओम. नीचे कौन, ये भाई सेपरेटली लिखो. अभी अभी करोगे तो झगड़ा हो जाएगा. इसको लिखो निगेटिव, हाँ पोलैरिटी ठीक से दिखाओ. और ये ऐसा, ये कितना 3 वोल्ट 3 ओम, ये कितना है 2 वोल्ट 2 ओम और ये कितना है 3 वोल्ट 4 ओम. I hope you have understood that. Do the keen observation. Please concentrate. What is the formula? पहिल्यांदी असं नाही करायचं. पहिल्यांदी सगळे पोट्टे आहेत ना, त्याचा खाऊ काढून घ्या. हा हा ते लय तुम्हाला त्रास होणार. हे किती करते 3 किलो, हे 2 किलो करते, 4 किलो करते. पण हे पॅरलल आहे. जहाँ खायला घेतली त्याचा अर्थ दुसरा खाणार कमी होणार. पॅरलल रेजिस्टन्स कमी और ऐसा होना लेस रेजिस्टन्स. सो 3 × 2 × 4 आर इक्विवेलेंट कर दो. चला राइट हो गया, सगळ्यात दिसतंय थोडं जरा असं आपल्या भावासाठी आर इक्विवेलेंट. हां डायरेक्ट होणार 3 × 2 = 4 6 × 4 24. अरे ऐसा नो गौर अंडरस्टूड मिताली काबर आवाज आला का आपला आवाज कसा आहे, जीव कमी आवाज मोठा आहे. नो प्रॉब्लेम. हां and 3 to the 6 plus 2 4 the 8 20 14 झाले आणि 3 4 the 12 18 ना 18 झाले ना. 3 to the 6 2 4 the 8 14 झाले. 14 लक्षात ठेव 14 3 4 the 12 12 plus 14
26 12 by 13 अलग है that will be internal resistance and epsilon equivalent no problem epsilon 1 upon r1 okay shall I rub this so to you people I will suggest आपको अगर नहीं आ रहा है तो बाजू उठाओ इसको आप स्क्रीनशॉट लो बाद में लिख दो चलो पाठ ये बड़े हैं वर्ग कैसे हाँ भी कर सकते फास्टेस्ट मेथड हाँ चलो बोला तुम भी बोला एप्सिलॉन इक्विवेलेंट हमारे बच्चे ही बोलेंगे 3/3 हाँ व्हाट वी आर टेकिंग दिस इज नेगेटिव ना माइनस 3/3 हाँ दिस इज माइनस प्लस माइनस 2/2 now plus 3/4 understood okay -1 plus 3/4 so -2 plus 3/4 so it will be -8 plus 2 हाँ हाँ चलो ये दो हाथ चलो किती सांगतो व्यवस्थित ऐकत नाही -8 plus 3 -5 by 4 don't forget -5 by 4 what is the meaning of that so total equivalent will be -5 by 4 मतलब ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं आपको क्या पूछते हैं find the total current in the circuit so I will need epsilon equivalent upon R equivalent अरे इसका can you calculate अभी टोटल करंट मिल गया बाकी जो करना है वो आप किस से कर सकते हो करंट थ्रू दिस ब्रांच तो उसको क्या करना है तो उसमें क्या करने का जो मैंने इसके पहले डायग्राम बनाया था ना उससे देख लेने का कौन बड़ा कौन छोटा अभी ये माइनस आ रहा है तो जो दोनों का मिलके माइनस आ रहा है ना हाँ so where the current will go where the current will go this 3 is there na so you have to find it here the direction will be like that here it will be like that यहाँ पे ऐसा है मतलब ये प्रोवाइड कर रहा है इट इज प्रोवाइडिंग उसके वैल्यू पे मत जाओ पहले देख के लें डायरेक्शन लगा के है ना और ये नहीं हो जाएगा ये पैरेलल है हाँ तो हियर व्हाट विल हैपन हियर व्हाट विल हैपन हाँ देखो अभी देखो ना अभी क्या है कैसे देखेंगे या तो ऊपर जा रहा है तो यहाँ इसे ऐसे जाना पड़ेगा अरे ऐसा नो मतलब दो जंक्शन है कितना जंक्शन फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग थिंक अबाउट जंक्शन यहाँ पे कौन है निगेटिव यहाँ से कैसे जाएगा इस साइड पे यहाँ पे कौन है निगेटिव यहाँ से भी जाएगा मतलब यहाँ से क्या हो रहा है स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव है टैली बन गया अरे सो पॉजिटिव इज प्रोवाइडिंग यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन है पॉजिटिव मतलब करंट छोड़ेगा यहाँ पे है ना इधर आए यहाँ पे कौन है निगेटिव ऑलरेडी इधर छोड़ रहे उसको देना पड़ेगा थोड़ा लेते देना पड़ेगा यहाँ पे भी यहाँ पे अगर मैंने इसको बोला मैंने आई तो इससे पप्पा कौन बने मेरे ख्याल से पप्पा बनेंगे पप्पा ने पैसा दिया बेटा नंबर 1 हाँ उसने क्या किया उसके बेटा नंबर 1 को दिया उसके बेटा नंबर 1 को दिया अरे ऐसा हाँ ये दादाजी बन गए इसने अपने हाँ और फिर से वापस दादाजी को मेरा प्यार दादाजी को मेरा प्यार बता हाँ हो गया अरे सर तो दिस इज द वे तो आपका करंट कैसे बन जाएगा इसको बोलो आई इसको बोलो I1 बोलोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा I माइनस I1 बराबर ये I1 निकल गया ये I माइनस I1
तो ये I1 बन गया। I1 अभी फिर से स्प्लिट हो गया, इसको आप बोल सकते हो, हाँ ये कितना हो जाएगा, अगर ये I है बेटा, ये भी I ही होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा I, और ये I1 है और ये I है, ये कितना हो जाएगा I1 माइनस I, अरे उल्टा है ना इसके, दैट्स ऑल, नो नीड टू कैलकुलेट। तो आपको मिल गया I1 I माइनस I1, तो मिल गया I माइनस I1 प्लस I1 विल बी इक्वल टू I, इसको I1 I2 I3 हो गया। So this is the way in which we can solve the Kirchhoff's rule problems. समझ गए? So first question of the student. So that's okay, very fine. You have taught us nicely. No problem, sir. No problem about you. What is about us? कितना भी किया सर, मैंने चार पेज भर के प्रॉब्लम सॉल्व किया, चार का तो चार छोड़ो, एक तो मार्क मिलना चाहिए, आधा भी मार्क नहीं है। So what is the meaning of that, doing that? Benefit, what is the benefit? तो इसमें क्या है, किरचॉफ रूल का जो है, you have to find what is asked, करंट टू दिस, टोटल करंट पूछा है, इप्सिलॉन इक्विवेलेंट पूछा है, तो ये अपना मेथड है, इस मेथड से पहले टैली करके रखो। इसको कितना टाइम लगेगा प्रैक्टिस के बाद, अरे आपको सिखाने के लिए मैंने इतना टाइम दिया है, आपको कितना टाइम में करना है, 1 minute, 1 minute is sufficient, और 60 seconds are there in your hand. हाँ, अरे आज पहिले नाही बघताय, असेच 50 प्रॉब्लेम सोडवले, असेच मला सांगाल तुम्ही सर काय ते झालं आमचं, you will do that. So write down over there, much more practice of Kirchhoff's rule solving problems. Write over there. Both for competitive, for subjective. For competitive, use the tricks. ट्रिक मिळायला लागल्या खुश, हां शायद खुश नव्हते, ट्रिक सांगत नाही सर, बरोबर आहे, त्यांचा वेळ लागतो सोडवायला. अँड फॉर सब्जेक्टिव्ह, सब्जेक्टिव्ह मध्ये पण सगळे असे 10 पानं भरायची नाही, हां नाही तर किती मस्त सोडवा आणि मस्त 4 मार्क घेऊन या, बेटा तुला मार्केट पण किती 4 मिळाले, अरे बाप, बघताना पण बघणार नाही तू एवढं छान सोडवलं. यू हॅव टू राईट एव्हरीथिंग. So you have to follow paper that timing also. I told na which question, how much time to give. That also. Okay. So how many problems you have to solve? Minimum 50 टार्गेट घ्या. मग पहिले 10 होतील. थोडा कॉन्फिडन्स घ्या. मग नंतर पुढचे 10 सोडवताना सर मला 5 आले, हे 5 सोडवून द्या. त्याच्या पुढच्या 10 मध्ये सर 8 सोडवले. ओन्ली 2 आर रेडी. आणि त्याच्या पुढे मी येणार बेटा तुला काय प्रॉब्लेम जा सोडवलं. When rise 10 10 10 problems you will solve. Fourth time you will solve everything. आणि असे 30 प्रॉब्लेम सोडवल्यावर कुठल्या नवीन प्रॉब्लेम मिळणारच नाही, तो सोडवलेला असेल. हे सोडवलंय मी, हा टेस्ट 2 ला आलेला येतो, हा राऊंड 2 ला आलेला, असं होऊन जातं. देयर इज नो प्रॉब्लेम. आता कॉम्पिटिटिव्ह साठी सांगून देतो, थिअरीला ह्याला लागत नाही, सब्जेक्टिव्हला स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार बोललो ना तुम्हाला, सगळ्यांनी केले का? सो टुमॉरो कीप इन माइंड, यू हॅव अ प्रॅक्टिस, सी माय लेक्चर, लेक्चर आहे सगळ्यांकडे, हां मला होय म्हटलं नाही पण की मला असं इज इट देअर विथ यू रिअली? ओके ठीक आहे. स्टार डेल्टा प्रॉब्लेम काही करायचं नाहीये, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आणि स्टार टू डेल्टा, हा स्टार आहे ऍक्च्युली, दिसत नाही तुम्हाला वाय सारखं दिसत, समजलं? इथे काय ना त्याचे आहे ना, अरे सोपं आहे ते, काय तुम्हाला सांग दोन्ही दिस टू दिस टू. How much time is remaining? Are
30 minutes. Shall I go further or shall I take again the video? So we'll start with distance meter gauge. Is that clear? Okay. Any problem? You may ask your questions. Write down. Balanced मतलब आप नोट डाउन करो ऐसे मेरे को तो आदत है ना बोलने आई एम ए टीचर ना so once I will write down students balanced distance network और उसके बाद में क्या आएगा distance meter bridge आता तुम्ही कुठली परीक्षा द्या जगात मी डॉक्टर होणार आहे सर मी इंजिनियर होणार आहे काय पण व्हा कार्पेंटर पण व्हा डिस्टन्स मीटर आलाच पाहिजे फिजिक्स हां त्याला असं आठेपर्यंत होतं 100% लास्ट भी जिंदा हो सकता है लास्ट भी जिंदा हो सकता है लेकिन डिस्टेंस मीटर ब्रिज के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आया करते नहीं बोर्ड में नहीं आया जेई को आया जेई में नहीं आएगा सीट हो गया नीट को आएगा मोरल ऑफ द स्टोरी यू मस्ट डू इट आई डोंट नो एनी सॉल्यूशन यू मस्ट तो क्या होगा Wait for a while. Let me have some water. Corona है ना करो बताओ ठीक है Balanced Whitfield network, it will be the network of how many? How many resistors? So my dear friends, 5 or 4? हाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए 5 सिंप्लीफाई करने के बाद बराबर तो अभी हम क्या करेंगे 4 ही रेजिस्टेंस लेते हैं और फिफ्थ है ना तो पानी बेहतर है ठीक है R1 R2 R3 R4 there is no problem सपोज यहां से करंट आ रहा है I तो यहां कितना जाएगा जितना है लोग नहीं आई है कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा यहां से अगर I1 है यहां से I2 तो दो इक्वेशन मिलेगा I is equal to I1 plus I2 yes or no और I1 plus I2 is equal to R is there any difference nothing थोड़ा बताओ मुझे ये ऐसा आने के लिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा हाउ मेनी डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप्स वी विल गेट पोटेंशियल ड्रॉप डू यू नो पोटेंशियल ड्रॉप का मीनिंग है ये जो रेजिस्टेंस है ना इसमें से करंट जा रहा है I तो यहाँ पे ऐसा V लिखता हूँ ना that is called as potential drop across resistance that is called as the potential difference
Yes. But while doing this everywhere we call it as a potential drop. मतलब ऐसा दो तीन लगा दिया ना, तो कितना था एक्चुअली कितना था V था, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो गया V1 हो गया, बाकी वाला V2 यहाँ ड्रॉप हो गया और बाकी वाला V3 यहाँ ड्रॉप हो गया और इसको ड्रॉप को ऐड किया तो आपको टोटल पोटेंशियल मिलता है. अरे यस और नो series getting my point. So it is called as potential drop across the resistance. So suppose are you tired? वेंकटे रूपाली है ना साथ मतलब suppose this is the potential total potential correct. How to calculate that? V is equal to I into R equivalent. Yes or no? Now here there are two means current as distributed. There is sense. Yes or no? So this I will call it as V1. I am teaching in another way. Just like I taught you at the time of lecture, I am not teaching. This is the different way. To you also. आपको कोई अलग नहीं सिखा रहा है. यही आपको मिल रहा है ना. V2 this V4 and this एक ध्यान में रखने का क्या हुआ अपना सीरीज पैरेलल निकल गया लेकिन यहाँ पे है ना दैट्स व्हाट वी टॉट R1 R2 series parallel series so total potential across R1 plus R2 है ना यहाँ पे so when there is no resistance I can drop the equation as V1 plus V2 as my V and V3 plus V4 also as my V. ओके अभी बीच में रेजिस्टर करें ओके नाउ हाउ मेनी आर द जंक्शंस 4 2 were already there अभी यार मुझे अगला जंक्शन ना नाउ व्हाट विल हैपन I1 from the theory I1 must be get distributed here also here I2 will come here that current will come again that will combine and current will go getting my point so this is the starting of meter bridge so when the scientists did like that then they got the very surprising result what they got scientists told that this is junction A okay see this is B this is C and this is D. What they told when we analyze the circuit they got that if you will adjust the values of R1 R2 R3 R4 such that either ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया UD LL हाँ so this R1 R2 upon R2 ये रेशो R3 upon R4 की जितना आना चाहिए तभी आपका क्या होता है ब्रिज बैलेंस होता है उसको बोलते हैं ब्रिज so what is the meaning of bridge balance it means that if this is so or इसको उल्टा करो इसको इधर ले लो इसको उधर करो मतलब हॉरिजॉन्टल रेशो और वर्टिकल रेशो साइड मस्ट बी सेम हॉरिजॉन्टल लिया तो यहाँ पे बन जाएगा ऊपर वाला ये नीचे वाला वर्टिकल लिया तो ये लेफ्ट वाला ये राइट वाला तो अगर ये लिया और R1 upon R3 is equal to R2 upon बन गया देखो if it is so then very important V I and P C and D इनको बोलते हैं equipotential. What is the meaning of equipotential? You know
potential at C will be equal to potential at D. अगर दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम है तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? Two tanks are there at same height. There is the same water level. Same water level. How much will be water flowing from tank 1 to 2 or 2 to 1? If I will connect them. Will it flow? पाइप मध्ये राहणार होतं जोडला पाईपला तर पाणी नाही जाणार ते का हवा जाईल. So what is the difference of potential level difference? Zero. Difference I am asking. Level same. आता level same. आता तुझं वय किती? 17. तुझं किती रे? 18. तुझं 17 ना. तर तुझ्या आणि तुझ्या वयाचा फरक किती? 0 ना. Level same. Difference 0. I am asking potential difference. अभी एक को ऊपर लिया दूसरे को नीचे लिया अभी डिफरेंस बन गया तो पानी भी फ्लो करने लगेगा. फ्रॉम वेयर? हाँ हे लक्षात कसं ठेवायचं? जोपर्यंत सेम लेवलला आहे तोपर्यंत टाकीची लेवल खालीवर होणार नाही प्रोव्हाइडेड तुम्ही ते यूज करत नाही. सपोज एकाला वर घेतलं दुसऱ्याला खाली घेतलं काय होणार? वरची टाकी खाली होणार इकडची भरून जाणार सगळं पाणी इकडे का? हां त्याच्या लेवल are getting the point? So that is called the potential difference. So these points, if they are equal potential, what they will have potential difference? 0. आता मला सांगा, if the potential difference is 0, will the current flow through that? पानी जाएगा क्या? पानी मतलब यहाँ पे current will not flow. Why? तुम्हाला कसं येणार? मी काय विचारते? मी शिकवल्याशिवाय येणार का तुम्हाला? आपण मी शिकवलंय याला कोणी कधी विचारलं 2 आन्सर द्यायचे. काय द्यायचं? फर्स्ट लक्षात ठेवा व्हेरी इम्पॉर्टंट इन युअर लाईफ मीन्स स्टडी. करंट ऑलवेज प्रेफर्स लो रेजिस्टन्स पाथ. करंट ऑलवेज प्रेफर्स लो रेजिस्टन्स पाथ. means if this is the resistor बघा याच्यामध्ये किती प्रॉब्लेम सोडून दिले हे सीईटीचा 5-6 प्रॉब्लेम होते. this is the resistor and if I have connected simply this resistance by the means of the wire what you call it as? घरामध्ये एक काहीतरी अप्लायन्स आहे हां आणि काय केलं फेज आणि न्यूट्रल काय होणार? शॉर्ट. देयर इज द कन्सेप्ट ऑफ हे समजलं ना सगळ्यांना? ते पुसून टाकू त्यात पण झालेलं. देयर इज द कन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट. ओके तो यहाँ पे बेटा अगर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 देयर आर इक्वल पोटेंशियल सो उनके बीच में अगर रेजिस्टेंस भी हो उसका कुछ मतलब नहीं. करंट विल नॉट फ्लो. तो यहाँ से if this ratio is same, understood? Are everybody understood? समजते का नक्की? If this ratio is same, करंट जाणारच नाही बघू. मग किती ठेवा? क्या फरक नाही. Current will only prefer this and got my point? जर तसं नसेल तर तो it is not balanced resistance network. Then what you have to use? सांगितलेलं. त्याच्या अगोदरच बोललेलो. स्टार डेल्टा and delta star. If it is not, then directly using this step. Okay. मग शॉर्ट सर्किट आणि ओपन सर्किट कोणाला म्हणायचं? ओपन सर्किट कधी होईल? दाखवतो. हा जर इन्फिनिटी झाला हे झाला ओपन सर्किट दाखवत नाही मला. There are 2 points. What is the resistance between them? Open points. What is the resistance between them? No. Infinity. Voltage 0 असणार. काय हेच नाही याच्यामध्ये. ओपन
करंट विल नॉट फ्लो ना, हे लक्षात घ्या. करंट जाईल का? नाही. नाव दिस इज रेजिस्टन्स अँड दिस इज जस्ट अ वायर. कोणाचा रेजिस्टन्स कमी असेल? वायरचा. हे वायर. तो करंट विल फेवर लो रेजिस्टन्स. तो इकडे जाणार नाही. हे कशाला? ट्रॅफिक आहे तिकडे. मुंबईला जाताना कुठून जातो तुम्ही? पाम बीच. पाम बीच हायवे मध्ये हा का जातात? पनवेलच्या पुढे जाऊ शकत नाही, ट्रॅफिक असतं. 4 तास लागतील. मग लोक गाडी वळवतात. पाम बीच रोडवरनं डायरेक्ट पवई वगैरे करून तसे जातात. का जातात? ट्रॅफिक नाही. सॉरी टू स्पीक इन मराठी, बट टू अंडरस्टँड यू, मेक यू अंडरस्टँड. सो करंट ऑलवेज प्रिफर्स लो रेजिस्टन्स पाथ. लक्षात ठेवायचं. हे लक्षात ठेवा की कुठलाही प्रॉब्लेम होतो. 2 रेजिस्टन्स दिसले. हा तुम्ही असं म्हणणार मग सर असं कसं? हा 2 ओम आहे आणि हा 6 ओम आहे. मग असं 6 मध्ये जाणार का करंट? सगळं काही जण 2 मध्ये जातील, नो प्रॉब्लेम. काही 6 मध्ये जातील, जास्ती कुठून जातील? 2 मध्ये जाणार. 2 मधनं का? 6 मच रेजिस्टन्स, स्मॉल करंट. 2 लेस रेजिस्टन्स, हायर करंट. आता हेच प्रोपोर्शन इथे रेजिस्टन्स 0 करा. करंट विल बी इक्वल मॅक्सिमम व्हॅल्यू आपल्यासाठी. आणि इथे किती? 0. जाणार बंद. बंद कर रोड. अंडरस्टूड? कन्सेप्ट लक्षात आला? बाकी काही नाही. नाउ इन लास्ट लेक्चर I have explained you how to use Kirchhoff's rule to do that. R1 upon R2, R3 upon R2. परीक्षेला येतं. लक्षात ठेवा. एक्झामला सब्जेक्टला येतं. ते प्रूव्ह करणे. आता आपल्याला नुसतं ते बघायचं. I will give you rough idea of all type of meter bridge. All type of meter bridge. पहिला सांगू? व्हेरी सिम्पल. हा तुम्ही प्रॉब्लेम म्हणून सॉल्व्ह केला आतापर्यंत. आठवतंय का बघा? सर म्हणाले हे काय दाखवत आहे? म्हणजे आम्हाला येतं एवढे पण सांगले नाही आम्ही. हा इट इज ऑल्सो बॅलन्स डिस्टन्स नेटवर्क. आलं का? आहे काय? होय काय म्हणताय? व्हॅल्यू लिहिली आहे तो रेजिस्टन्सची? हा सांगायचं सर. सर व्हॅल्यू लिहिलेली आहे ती लिहा म्हणा. 2 4 3 6 आणि हा घ्या 8 ओहम. ओहम चेक करा जरा आहे का? हा 2 4 3 6 आणि मधला 8. whether it is balanced or not balanced. हेच प्रॅक्टिस आपल्याला करायची. इट्स व्हेरी सिम्पल. काय करून द्यायचं? हे दोघे आहेत ना, नेहमी लक्षात ठेवा. these two brothers, these two brothers आता तिथं नाही झाले. these brothers आता नाव टाकत टाकून बघा. 2 3 हा 2 3 आणि 2 ला जोडलेला 4. दिस इज 6. दिस इज 8. 2 by 4 3 by 6 balance unbalance cross check करू. 2 by 3 2 by 3 4 by 6 also 2 by 3. now whether it is 1 8 10 10.5, don't worry about that, skip it. Direct this will be 4 plus 2 6 6 plus 3 9 6 parallel 9. That will be the total resistance. Understood? So this is type 1. This here direct will not come because for both resistance in series and parallel is. But while solving the problems for the competitive or for the board also, the concept may come. हुशार आहे त्यांनी सांगितलं नाही तर काढून टाकले. मुलांचे अभ्यास नाही करत. सावट माणसं मुद्दाम टाकणार असं. आणि नंतर तुम्ही हे केलं ना, चॅलेंज केलं फ्युचर
No, no, we have not asked about combination. Huh? We told about displacement. Then we are speechless, taking that sheet again in our pocket. हे इम्पॉर्टंट आहे. उद्या इंजिनिअरिंगला गेला तर मला शिवाय घालतात. हे सरने आम्हाला सांगितले नाही म्हणून आम्हाला येत नाही. आय डोंट वॉन्ट दॅट. ओके. If it is not balanced, then what to do? If it is not balanced, this was balanced, balanced. If it is not balanced, then you have to consider 2 delta rays of rho, convert them into star. This will be converted into star, and this will also be converted into star. But at once, पहिल्यांदा करून घ्या. म्हणजे हा काय करायचा? हे आहे ना. Now this logic is up to you. तुम्ही कसं करता? Okay. Okay. You use your own technique. Where to use star data? Because these 3 are there, na? Are you getting my point? Now instead of that, what you can do? What you can do? Yes, go ahead. What you can do? How to apply star data? Okay, I will take a separate lecture on. I will take a separate lecture on how to use star delta for the interested students only. So those who want to see the lecture, they may see. For you also, I will. Okay, that will be very good. Third thing. Now come to the point. How much time is remaining? 5 minutes are remaining. Very important means 5 minutes. Okay. Now, with the speed of light, we will go. Take a wire. What is the resistance of the wire? R. What is the resistivity? Rho. R is equal to rho into L upon A. I am not changing the area of cross section of the wire, or I am not changing the material. Then my R will be proportional to in this case. Are you sure? Now, the same technique, if I will use, and I will take 2 resistors. How many? 2. This is R1, this is R2, and here I will connect a wire. I will connect a wire of length how much? L. This is how much? No, this is of 100 meter, and one I will consider L. Okay? And in between I will put gallon. Okay? Is there any problem? So, I will call this to be my R1. This is for your understanding. मीटर बीज सांगायचं असेल तर सरनी दिलेल्या नोट्सच वापरायच्या. मराठी सर आहेत ना, त्यांनी ते नोट दिले म्हणजे कुठलेही तुमचे सर असतील त्या नोट दिले ते वापरायचे. शॉर्ट नोट समजायला आहे बघा. R1 R2 R3 So applying balance resistance network R1 upon R2 R3 by R. Now change. Suppose this is L, then what it will be? So what will be R3? Rho into L upon A. Yes or no? This will be rho into R1 upon R2 will be unknown कुठला असतो? राईट चा unknown असं काय नाही, लेफ्ट आपण पण घेऊ शकतो. If this is unknown x, then what will value of x? X will be, this is if it is x, and x will be here. So R into 100 minus L upon L. Is that there? कठीण आहे काय? पहिलीतल्या पोरग्याला शिकवतील तो करेल. त्याला फक्त एल बिल ते माहित नाही. बेरीज वगैरे आहे, ऍडिशन सबट्रॅक्शन ही विल ऑल्सो. That was of simple. CET one question, 100% comes. 1 mark in pocket. JEE also there ask. If they will not ask potentiometer, they will ask meter.
Which type of questions will be asked? 2 minutes are there. If the position of R1 and R2 लिहून ठेवा बघत बसू नका. Time is money. हाँ वर लिहून घ्या. Distance meter bridge. Important points. म्हणजे important काय म्हणतो त्याला? Important problems to solve. Number 1, if position is interchanged. If position is interchanged, what will be the impact on this? This म्हणजे ते लक्षात घ्या. If the position is interchanged, R1 ला एक दिला, R2 ला एक दिला, तर L1 काय चेंज होईल? ते बघा. What will be the impact on the ratio? आणि अजून एक क्वेश्चन येतो. If instead of using this wire, if another material is used, what will be the impact? काय होणार आहे? काय होणार? चेंज होईल की तसंच राहील? बॅलन्स पॉइंट that I keep for you to think. मटेरियल बदललं म्हणजे काय म्हणतात? रेजिस्टन्स बदलणार ना? अरे असं म्हणजे हा R3 प्लस R4 झाला ना? ती काय व्हॅल्यू असेल ती डिवाइड केली है ना? बट यू आर टेकिंग R3 R4, what you are taking? Length L upon 100 minus L. मग आता मला सांगा लेंथ बदलली का मी वायर मोठी घेतली का? मग जरा रेशो तर तसाच ठेवत असेल मी आणि फक्त वायर बदलली. रेशो तसाच ठेवला, वायर फक्त चेंज केली. हा रेशो चेंज होणार का? So in order to balance that ratio, the same balance point we have na. So if you are not changing this value, then balance point will not be changed. Balance point is unique. And it ठरवायचं विचारलं ना, galvanometer doesn't show deflection at any other point. Sorry, galvanometer doesn't show any deflection at exactly at this point. म्हणजे काय समजायचं? No current is flowing through the galvanometer. And this is the proof of they both are equipotential. का त्याच्यात तर करंट गेला नाही, मग रेझिस्टन्स काय झाला? इन्फायनाइट. किती असेल? Getting my point? Understood? So if you are having any doubt, any query, feel free to ask me on my personal number. Tomorrow once again we will meet to discuss about more things from the current electricity. Till that, stay home, stay safe and stay tuned with physics. Thank you. Thanks a lot. Bye bye.